Hello everyone, I welcome you all in our next video of online classes, right? So today I am going to start with a new chapter, that is lesson 2, The Adventures of Toto, which is a part of uh, periodic test 1 in moments, right? So class, if you remember, we have already completed one chapter, that is the lost child, which is in moments only, which is a part of periodic test 1. We have already completed. If you remember that we also discussed many doubts uh, in live class, right? So and as well as we have covered 2 or 3 paragraphs of this chapter also in our live class, right? So today I am taking all those paragraphs that we have completed in our live class. I am taking those paragraphs again in this video class, right? So that those students who have skipped the class, who have not joined the class at that particular day, they can also go through the chapter and they can also understand the paragraphs that we discussed in live class, right? So again, like I am going to start with this lesson 2, that is The Adventures of Toto, which is a part of periodic test 1 in moments, right? So let's go through the chapter. Let's understand. Let's go let's reveal what is given in this particular chapter, right? So let's start class. So Prayag Public School, English Literature Moments, Periodic Test 1, Class 9, Lesson 2, The Adventures of Toto, right? So let's move further class. The Adventures of Toto by Ruskin Bond. Now this is the story which is written by Ruskin Bond, right? Let's start. The Adventures of Toto, right? So this is lesson 2. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile, right? तो over here the author is saying कि क्या आपके पास कभी जो मंकी है, क्या वो कभी जो क्या बेबी मंकी आपके पास रहा है क्या? कभी आपने उसे पेट बना के, मतलब पालतू बना के, जैसे हम पालतू जानवर अपने घर में रखते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, रैबिट्स एक्सेट्रा, लाइक, एंड सम बर्ड्स ऑल्सो. So now the author is asking from us that have you ever kept a baby monkey in your home as a pet? Toto is a baby monkey. Now here Toto is the name of a monkey, baby monkey, who is a small baby. He hasn't become an adult, but he is a small monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Now the author is saying, okay, let us go through the whole story and let us find out whether this monkey, that means the Toto, in the story is acted as a mischievous animal or docile. Now mischievous means, now over here I want to show you that I have written some meanings as well. Now you can go through this meanings. You can also, it will also help you to write down all the word meanings, like I ask you every time to go through the chapter, to write down the meanings in your book and in the copy as well, so you can note it down from here as well, right? So mischievous, over here you can see I have written naughty or disobedient, one who don't obey anybody, right? And docile means dutiful or cooperative. Okay, so let's go back class. So over here the author is asking कि whether the monkey Toto is mischievous, मतलब वो शरारती है या docile. Docile means innocent, not very naughty, like is a very good personality, like this, right? So let's read the paragraph first. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ठीक है. Now over here ये grandfather किसके हैं? ये grandfather हैं आपके author के, ठीक है, Ruskin Bond, who is the author of this story. Now he is saying that my grandfather bought Toto. Bought means खरीदना. तो टोटो को खरीद के लाए थे किससे? एक टोंगा ड्राइवर से. The Tonga driver used to keep the little red monkey, ठीक है, tied to a feeding trough. अब ये जो टोंगा ड्राइवर था, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई रिक्शे वालों को मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो अपने जहाँ हैंडल, जहाँ पे वो पकड़ते हैं हैंडल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपने कभी कभार देखा होगा कि वो उस पर मंकी बैठा ले रहते हैं, या कोई अगर वो पालतू जानवर उन्होंने पाल रखा है तो वो वहाँ पे बैठा ले रखते हैं, या तो अपने रिक्शे पे या रिक्शे के हैंडल पे. और ये मंकी वाली हर बातें तो आपने कई बार देखा भी होगा घूमते टहलते, शायद चाहे अपने शहर में या बाहर भी. तो उसी तरीके से ये जो टोंगा ड्राइवर था वो
ठीक है, ये बुलक कार्ट वाला जो था टोंगा ड्राइवर, ये उस मंकी को बांध के रखता था टू अ फीडिंग ट्रॉ। फीडिंग का मतलब है जिसमें एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम एनिमल्स को, मतलब अगर कोई पालतू हमारे घर में कोई जानवर हमने रखा है तो हम जिस भी कंटेनर में उसको खाना या पानी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं, खाना और पानी देने को हम कहते हैं फीडिंग करना, फीड करना, किसी को नरिशमेंट देना, ठीक है, या नरिश करना। और ट्रॉ का मतलब होता है, यहाँ पे कंटेनर की बात हो रही है, वो कंटेनर जिसमें हम पालतू जानवरों को खाना या पानी देते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये होता है आपका ट्रॉ। ये देखिए, आप ये देख सक रहे हो, ट्रॉ है ना, जैसे ये कुछ आपके काउस यहाँ पे दिख रही हैं पिक्चर में आपको, एंड दे वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर। नाउ यू कैन सी द कंटेनर इन ब्लैक कलर एंड in that container it is containing what? Water, right? So this is this is known as straw, right? और feeding का क्या मतलब है, अब यहाँ पे पानी है, गाय यहाँ जो आप देख रहे हैं 4-5 यहाँ पे पानी पी रही हैं, तो वो जो पी रही हैं या खा रही हैं that is known as feeding. Class clear? So feeding straw, right? And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या है कि जब दादाजी ने उस मंकी को उस टोंगा ड्राइवर के पास देखा तो वो दादाजी समझ गए कि ये मंकी यहाँ के लायक के लिए, मतलब यहाँ के लायक तो नहीं है, मतलब अगर इस टोंगा ड्राइवर के पास रहेगा तो वो और भी मतलब ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, या थोड़े दिन बाद ऐसा भी आएगा कि शायद वो मर जाए, इस दुनिया में ना रहे। तो क्यों ना ऐसा करता हूँ कि मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ इसकी देखभाल मैं अच्छे से करता हूँ, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। तो अब यहाँ पे टाइड का मतलब क्या है, फास्टन या अटैच, किसी से अटैच करना या बांध के रखना। फीडिंग मतलब जैसे अभी मैंने बताया नरिशमेंट, और ट्रॉ का मतलब है कंटेनर फॉर ड्रिंकिंग और ईटिंग, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। ये है आपका ट्रॉ। नाउ पैराग्राफ 2। टोटो वॉज अ प्रीटी monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, right? So यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जो टोटो है वो बहुत खूबसूरत मंकी था। प्रीटी मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग मंकी, ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग मंकी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, राइट। हिज ब्राइट आइज़, जो उसकी आँखें थी वो एकदम चमकदार थी, चमकती थी। हिज आइज़ वर शाइनिंग विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। अब मिस्चीफ का मतलब है, अगेन मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पार्कल का मतलब है शाइनी, मिस्चीफ का मतलब है नॉटी फुल, पर्ली का मतलब है वेरी वाइट एंड शाइनी। मतलब पर्ल मतलब आप जानते होंगे मोती होता है, तो मोती शाइन करता है, मोती वाइट कलर का होता है, शाइनी होता है, वही मतलब है। एंग्लो इंडियन का मतलब है जो, मतलब वो लोग जो दोनों जगह से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से भी और इंडिया से भी। पिकल्ड का मतलब है टू प्रिजर्व और टू कीप, मतलब प्रिजर्व करके रखना या कहीं पे रखना, ठीक है, मतलब एक हिसाब से किसी के इन्फ्लुएंस में किसी चीज़ को रखना, ठीक है। विकेट का मतलब है रॉन्ग और बैड। सो लेट्स गो बैक एंड प्रोसीड द पैराग्राफ। सो मिस्चीव, यहाँ पे हिज ब्राइट आइज, जो उसकी आँखें थी वो चमकदार थी, मतलब उसमें चमक थी। विद मिस्चीव जैसे अभी हमने पढ़ा नॉटीफुल, मतलब फुल ऑफ नॉटीनेस। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, मतलब जो उसकी आईब्रोज थी वो डीप सेट थी। अब जैसे कल मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि डीप सेट का मतलब है कि आईब्रोज उसकी जो थी वो धसी थी, मतलब उसकी आँखें जो हैं एकदम धसी थी, और उसी आँखों, जो धसी हुई आँखों के ऊपर ही उसकी क्या थी, आईब्रोज थी। और आईब्रोज को देख के लगता था ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, मतलब उसका चेहरा बहुत मिस्चीवियस, मतलब नॉटी वाला चेहरा लगता था कि उसको देख के पता लगाया जा सकता था उस मंकी को कि ये बहुत शरारती मंकी है, राइट। और यहाँ पे डीप सेट आईब्रोज का मतलब क्या है कि अब क्योंकि आपको मैंने लाइव क्लास में भी समझाया था कि उसकी आँखें जो धस इस वजह से गई थी अंदर क्योंकि उसको खाना पानी या जो नरिशमेंट वाली चीज़ें थी, जो मतलब हेल्दी चीज़ें थी, वो उसको टाइमली वो टोंगा ड्राइवर सप्लाई नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं दे पा रहा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। अब आपको मैं डीप सेट आईब्रोज दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आप देखिए,
ये आप देख सकते हैं ना कि इसकी जो मंकी की, ये दो आपको मंकी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आप मंकी देखिए, इसकी आंखें जो है एकदम अंदर धसी हुई हैं, और आप ऊपर देख सकते हैं इसकी आईब्रोज दिख रही हैं ना, डीप सेट आईब्रोज, मतलब, और इसको देख के लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर his saying was कि that while seeing और after seeing this kind of eyebrow anyone can predict, मतलब कोई भी ये मान सकता था या जान सकता था कि ये जो monkey है he was a very mischievous kind of person or animal, right? So let's proceed further class. And his teeth which were a pearly white, pearly means full of shiny and white, very often very often displayed in a smile. अब जो इसके दांत थे, जो पर्ली वाइट कलर के इसके दांत थे, एकदम चमकीले दांत थे, जो एकदम चमकदार वाइटिश जो टीथ थे इसके दांत थे, वो ज़्यादातर कब उसको देखने को मिलते थे, जब वो स्माइल करता था, ठीक है। और जब भी वो स्माइल करता था और जैसे उसके दांत दिखते थे, तो हो सकता है या आसपास ऑथर के आसपास कुछ एंग्लो इंडियंस लेडीज़ रहती थी, जो कि जैसे ही वे लोग इस स्माइल को देखते थे फुल ऑफ वाइटिश एंड शाइनी, वे लोग एकदम डर जाते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। पर उसके अब यहाँ चेहरे तक अगर हम इसकी चेहरे की बात करें, तो चेहरे तक तो सब कुछ सही था अकॉर्डिंग टू ऑथर। उसका चेहरा, मतलब इस टोटो का चेहरा, तो चेहरे तक की बात सब कुछ सही थी। बट जैसे उसके हाथों के बारे में अब वो ऑथर बता रहा है कि उसके हाथ एकदम ड्राइड अप हो गए थे। ड्राइड अप मतलब एकदम सूख गए थे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि उसको खाना पानी टाइम से नहीं मिलता था, वो टोंगा ड्राइवर नहीं दे पाता था। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। अब जैसे हम अचार, यहाँ पे पिकल्ड का मतलब है अचार से रिलेटेड है, कि जब हम अचार को बनाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि हम जो भी मसाले होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें भर के, ठीक है, उसमें अच्छे से उसको पूरी तरीके से मतलब मिला के उसे कहाँ रख देते हैं? सूखने के लिए। बट ऑब्वियस है उसको हम धूप में रख देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी बताया गया है कि इसके हाथ जो हैं वो इतने सूख चुके थे, ऐसा लग रहा था कि उनको जैसे कई महीनों से या कई सालों से उनको इसके दोनों हाथों को और पैरों को कहाँ रख दिया गया था? धूप में सूखने के लिए। उसके हाथ और पैर को देख के ऐसा लग रहा था। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। पर उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत तेज़ी से काम करती थी और बहुत ज़्यादा विकेट थी। विकेट मीन्स वेरी बैड, मीन्स फुल ऑफ नॉटीनेस। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ठीक है। और जो उसकी टेल थी, टेल मीन्स पूँछ, और जो उसकी पूँछ थी वो उसके गुड लुक्स में, मतलब उसका जो लुक्स था उसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहा था, ठीक है। मीन्स दैट टेल्स बिकॉज ऑफ हिज टेल ऑल्सो ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, और यू कैन से वेरी प्रिटी और वेरी गुड लुकिंग मंकी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। अब ग्रैंडफादर का ये मानना है, यहाँ पे ऑथर कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी का ये मानना था कि अगर हम लोगों की, मतलब सारे लोगों की पूँछ हो, तो पूँछ से हर इंसान या हर जानवर, जैसे हर जानवर अच्छे लगते हैं वैसे हर इंसान भी अच्छा लगने लगेगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ह्यूमरस activity that has been involved to entertain the audience or the reader by author's side, right? Also served as a third hand. अब जो इसकी टेल थी वो इसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। आपने कई बार देखा भी होगा बाहर घूमते वक्त, या अगर कभी कहीं आप पार्क में गए हो तो वहाँ भी अगर मंकी है तो आपने देखा होगा कि किस तरह वो दोनों हाथों के अलावा अपने पूँछ से भी वो लटकने का काम या किसी चीज़ को लेने का काम या स्नैच करने का काम वो करते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। नाउ हिज टेल वॉज एक्टिंग एज अ थर्ड हैंड। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। जैसे अभी मैंने बताया कि वो ब्रांच से अपने आप को टांगने के लिए वो क्या करता था? हैंग करने के लिए क्या करता था? इस टेल का इस्तेमाल करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग। कैपेबल मीन्स टू बी एबल ऑफ, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के लिए क्षमता रखना। तो कैपेबल वो किसके कैपेबल था? ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और जो भी डेलिकेसी का मतलब यहाँ पे स्कूपिंग अप का मतलब है, आप देख सकते हैं मैंने इसको भी लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे स्कूपिंग अप का मतलब है टू टेक और ग्रैब, मतलब छीन लेना या पा लेना या किसी चीज़ को उठा लेना। और डेलिकेसी मीन्स फूड आइटम्स होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। जो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेलिकेसी, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ऑथर बोलता है कि ये अपने पूछ से जो भी डेलिकेसी, मतलब जो भी फूड आइटम कहीं मेरे घर में बनता था या आसपास कहीं बनता था, तो ये क्या करता था, ये उनको उन सारी डेलिकेसी, मतलब उन सारी फूड आइटम्स को ग्रैब कर लेता था या स्नैच कर लेता था या सिंपली ले लेता था अपनी पूंछ के हेल्प से। अगर उसके हाथ उस फूड आइटम्स तक या उन सारे फूड आइटम्स तक नहीं पहुंच पाते थे, तो वो किसका इस्तेमाल करता था, अपने पूंछ का, मीन्स अपने टेल्स का, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। ओके, grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। अब grandmother, क्योंकि अब दादा हैं, जो उसके दादा थे तो उसकी एक दादी भी थी, मतलब ये ऑथर की। तो grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। फर्स्ट का मतलब है टू गेट एंग्री, राइट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का मतलब है डिस्ट्रेस और टू गेट एंग्री, और पेग का मतलब है स्मॉल नेल्स, जिसे हम कील कहते हैं, या जिसे हम आप वो देखे होंगे कि मैं आपको फ़ोटो पे दिखा दे रहा हूँ कि ये होता है जिसमें हम अपने कपड़े टांगते हैं ना, तो ये नेल्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो खीली जिसे कहते हैं, तो वो होते हैं आपके पेग, उन्हें पेग हम कहते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट मीन्स अभी हमने पढ़ा कि एंग्री, मतलब जब भी ग्रैंडफादर, यहाँ ऑथर कहता है कि जब भी मेरे दादाजी कोई नई चिड़िया या कोई नया जानवर घर पे लेके आते थे, तो मेरी दादी जो थी वो बहुत गुस्सा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड हुआ, दोनों मतलब दादाजी ने और ये ऑथर ने आपस में ये डिसाइड किया कि हम तब तक दादी को इस टोटो के बारे में नहीं बताएंगे जब तक कि वो अच्छे मूड में ना हो। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लोसेट ओपनिंग का मतलब क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि अलमीरा होती है, तो एक अलमीरा तो ऐसी नॉर्मली बन के आती है जो कि आयरन से बनी होती है या मे बी वुडन होती है। बट आपने अलमीरा देखा होगा कई घरों में कि वॉल पे बना देते हैं, मतलब वो दीवार में ही अलमीरा बना देते हैं और उसको फिर उसमें आप देखे होंगे दरवाज़ा लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके की यहाँ पे बात हो रही है, बेडरूम वॉल, उसकी बेडरूम, जो ऑथर की बेडरूम वॉल थी, उसी में एक अलमीरा जैसा बना हुआ था, ठीक है, और उसी में इसको बांध दिया जाता है। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, मतलब सिक्योरिटी के साथ, पूरे सिक्योरिटी के साथ उसे टाई कर दिया जाता है। टाइड मतलब बांध दिया जाता है। और सो वी थॉट टू पेग फास्टन इनटू द वॉल। और जैसे अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये जो अभी पेग था ना, जो नेल्स जिस पे हम कपड़े टांगते हैं, उसी तरीके की जो नेल्स से या उसी तरीके की जो ये खीली थी, ठीक है, वो वहाँ पे गड़ी हुई थी, मतलब उस क्लोसेट ओपनिंग में, ठीक है। और उसी के अंदर, क्योंकि वो एक अलमीरा था, उसी के अंदर कपड़े टांगे जाते थे ऑथर के, तो उसी पेग में ये क्या करते हैं, ये दादाजी और जो ऑथर हैं, ये उस बंदर को, मीन्स इस टोटो को वहाँ पे बांध देते हैं ताकि वो कहीं से भाग ना पाए, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster, right? तो जब वो उसे बांध के चले जाते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ये ग्रैंडफादर और ऑथर जब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसको बांध के चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं थोड़ी देर बाद कि चलो देख के आते हैं कि अब टोटो कैसा है, क्या वहाँ पे वो सही है, खुश है, मतलब आराम से है कि नहीं, रिलैक्स कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद, थोड़े घंटे बाद जब वो वहाँ पे लौट के आते हैं उस ऑथर के रूम में, और जैसे वो अलमीरा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड। अब जो भी वहाँ पे ऑर्नामेंटल पेपर से वो दीवार कवर थी, ऑर्नामेंटल का मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फिर वर्ड मीनिंग लिखी हुई। रिलीज़ का मतलब है टू फ्री, ऑर्नामेंटल का मतलब है डेकोरेटिव और फैंसी। जैसे आपने देखा होगा घर में आजकल
कई सारे या कई घरों में आपने देखा होगा कि हम डेकोरेटिव पेपर्स लगा देते हैं ताकि वो वॉल पे अच्छे से लग जाए और वॉल जो नेक्ड दिख रही है वो जो प्लास्टर वॉल दिख रहा है वो एकदम पूरी तरीके से ढक जाए और डेकोरेटिव हो जाए और अच्छा भी लगे, ठीक है, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। नेक्ड का मतलब है अनकवर्ड, रेंच्ड का मतलब है पुल और टेकन आउट मतलब उखाड़ देना, श्रेड्स का मतलब है कट इनटू पीसेस, ठीक है, कोई बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, और प्लीज्ड का मतलब है टू बी वेरी हैप्पी। सो लेट्स बैक एंड प्रोसीड। सो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड, अब ये इन्होंने इसके दादाजी ने और इस ऑथर ने क्या देखा कि जो अभी ऑर्नामेंटल पेपर से जो कि ग्रैंडफादर ने लेके आया था और उसे अपने अपने हाथों से उस दीवार पे सजाया था या लगाया था, इस ऑर्नामेंटल पेपर को क्या किया है, उसने उखाड़ दिया है, मतलब उसने पूरी तरीके से फाड़ दिया है, फाड़ डाला है इस पेपर को, राइट। नाउ स्टूड आउट, अब जहाँ पे अभी तक ऑर्नामेंटल पेपर लगा था अब वहाँ से क्या दिख रहा है, वहाँ पे वो ब्रिक्स और प्लास्टर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब उसने पेपर पूरा निकाल दिया था, अब सिर्फ क्या दिख रहा था, वो ब्रिक मतलब वो ईंट और प्लास्टर दिख रहे थे, मतलब क्योंकि अब क्यों दिख रहे थे, क्योंकि उसने जो पेपर लगा हुआ था, जो डेकोरेटिव और फैंसी पेपर लगा हुआ था, उसने उसे फाड़ दिया था या उखाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, ठीक है। अब जो पेग मतलब जो खीली, ये जैसे अभी मैंने बताया कि जिस पे हम कपड़ा टांगते हैं या राइट, तो जो वो खीली लगी हुई थी सॉकेट से, मतलब मेन सॉकेट से जब दीवार से जो अटैच थी उसे भी उसने उखाड़ दिया था, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेज़र विच हैड बीन हैंगिंग देयर, अब वो बोलता है कि और मेरा स्कूल ब्लेज़र, मेरे स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ पे टंगा हुआ था उस अलमीरा में, वॉज इन श्रेड्स, जैसे श्रेड्स अभी मैंने बताया क्या मतलब है, टू कट इनटू पीसेस, मतलब उसके स्कूल ब्लेज़र को उसने बड़ा सा, मतलब एक ब्लेज़र जो था स्कूल का उसका पहनने वाला, उसको काट डाला था किसने, इस मंकी ने, छोटे छोटे पीसेस में। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास, वुड से, अब ये सोचने लगा, ये जो ऑथर है वो सोचने लगा कि अब ग्रैंड मदर मेरी क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर अब मेरी क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, पर ग्रैंडफादर मतलब वो सोचने लगता है यहाँ पे ऑथर कि अब मेरी दादी जब ये सब देखेंगी तो वो क्या कहेंगी, मुझ पे गुस्सा करेंगी कि मैंने अपना स्कूल ब्लेज़र कैसे, मतलब किस कंडीशन में था और उसकी क्या कंडीशन हो गई है। पर मैंने देखा कि मेरे दादाजी ज़्यादा चिंतित नहीं थे, वो ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था टोटोस की परफॉर्मेंस देख के। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, ठीक है। तो ग्रैंडफादर अब उसे अपने मतलब इस ऑथर से कहते हैं कि ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा चालाक है ये बंदर जो टोटो है। गिवन टाइम मतलब अगर इसे समय दिया जाता, मतलब अगर हम लोग थोड़ी देर और ना आते तो मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे जो ब्लेज़र जो इसने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना, इन ब्लेज़र्स को ये क्या करता, ये आपस में बांधता और फिर एक रस्सी बना के ये इस विंडो से निकल जाता। मतलब दादाजी का ये कहना था अपने मतलब इस ऑथर से कि अगर हम थोड़ी देर और करते, अगर हम थोड़ी देर और ना आते और आराम से कहीं रिलैक्स कर रहे होते तो ये क्या करता, ये तुम्हारे ब्लेज़र को जो इसने फाड़ दिया है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया है, उसकी ये रस्सी बनाता और इस विंडो से वो ज़रूर भाग जाता। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together, right? So his presence in the house still a secret. Still a secret मतलब अभी भी जो ये ऑथर है उसके दादाजी, उसकी ऑथर की दादी जी को इस टोटो के बारे में अभी पता नहीं चला है, इसलिए उसकी, क्योंकि वो घर में है पर उसकी प्रेजेंस अभी तक सीक्रेट रखी गई है, किससे, ऑथर के दादी जी से। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड मीन्स टू मूव और टू शिफ्ट, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो पैराग्राफ 6 की मीनिंग लिखी है। ट्रांसफर्ड का मतलब है टू शिफ्ट और मूव, सोशबली का मतलब है फैमिली या फैमिलियरली, राइट, या फैमिलियर इन अ फैमिलियर वे। टेम का मतलब है जेंटल या और डिसिप्लिन, ठीक है। टेम का मतलब है डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में रहे, जो जेंटल इन अ वेरी गुड पर्सनालिटी और इन अ वेरी जेंटल और गुड मैनर, राइट। कंपेनियंस मीन्स मेट और फ्रेंड्स, जैसे स्कूल मेट्स होते हैं, ठीक है, क्लासमेट्स होते हैं, तो ये क्या हो गए, ये कंपेनियन है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो साथ में रहते या पढ़ते हैं,
तो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. ओके, सो टू अ बिग, अब ट्रांसफर्ड का मतलब है उसे शिफ्ट कर दिया, मतलब अब उस रूम से जब दादाजी और उसके ऑथर को पता, मतलब इस ऑथर को पता चल गया कि अगर हम इसे अब यहाँ फिर से रखेंगे तो ये पक्की बात है अभी नहीं तो बाद में ये भाग जाएगा यहाँ से, तो उसको ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है एक बड़े से पिंजड़े में. केज मतलब पिंजड़ा. इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर्स था. क्वार्टर मीन्स काइंड ऑफ अ रूम. ठीक है, देर वॉज अ काइंड ऑफ अ रूम. सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब नौकरों के लिए जो वहाँ पे कमरा था उस दादाजी के, उनके दादाजी के घर में, तो वहीं पे एक बड़ा सा पिंजड़ा था, उसी में इस टोटो को शिफ्ट कर दिया जाता है. वेर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशबली, और जहाँ पे कई सारे और भी ग्रैंडफादर के जो पेट थे, मतलब जो पालतू जानवर थे जो कि ग्रैंडफादर ने अभी तक पाल रखे थे, वो वहाँ पे सोशबली सारे रहते थे. सोशबली मीन्स इन अ वेरी फैमिलियर वे. अब क्या क्या थे ये बता रहा है ऑथर. अ टॉर्टोइस वॉज देयर, अ पेयर ऑफ रैबिट्स वॉज देयर, राइट. अ टेम स्क्विरल, टेम मीन्स अ वेरी डिसेंट डिसिप्लिन स्क्विरल वॉज देयर. स्क्विरल आप सब जानते होंगे, ठीक है. एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ दिनों के लिए एक पेट गोट भी वहाँ पे थी या रही थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, कंपेनियन अगेन मीन्स फ्रेंड्स या द अदर एनिमल्स. ओवर हियर मीन्स द अदर एनिमल्स. तो मंकी, ये जो मंकी था, टोटो था, वो किसी को भी सोने नहीं देता था रात में. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. रात में जब भी रात होती थी या खासकर रात के टाइम में ये जो मंकी टोटो था ये किसी भी कंपेनियन को, जैसे वहाँ पे रैबिट्स थे, टॉर्टाइस थे, ठीक है, स्क्विरल थे, इन सब को वो सोने बिल्कुल भी नहीं देता था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता था. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. ठीक है, तो इसी वजह से ग्रैंडफादर जब वो जान चुके थे कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा, अगर मैं यहाँ पे उसको छोड़ के मैं जाता हूँ तो ये और भी ज़्यादा परेशान करेगा. तो इसी वजह से ग्रैंडफादर, जिनको दूसरे दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने, ठीक है, सहारनपुर में, तो वो इस टोटो को अपने साथ ले गए, राइट. सो दैट दिस मंकी शुड नॉट बी क्रिएटिंग एनी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स फॉर रेस्ट ऑफ द एनिमल्स हु वर केप्ट इन द केज और इन दैट सर्वेंट्स क्वार्टर्स, राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So class, there is a homework for you, right? So students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy and in book too, right? So in the very same manner as you have seen me, or in this video as well, that I have written word and meanings, right? Just to describe all the things that is given in that are given in the contents of the book, right? Or of the chapter, you can say. So in the very same manner, you have to write down the meanings in your book by underlining the words, and you have to write down the hard words in front of that, its meaning or their meanings in your classwork copy by putting the lesson name and lesson number on a very fresh new page, right? Also read the pages we have covered in this video. So whatever pages I have covered or whatever the paragraphs I have covered, you have to go through the same, right, from your book other than the video, right? And also read a little further, and you also have to read a little further so that the next time when I will be explaining to you all, you should be having a proper understanding of those things, right? So students, in our next class we will continue with the same chapter, right? So till then, take care and stay safe. Thank you class. Thank you so much.